friends and my dear students, today I am back with a topic known as meter bridge. It is a simple topic which is an application of Wheatstone bridge network. Last class we did Wheatstone bridge network, application based on Wheatstone bridge network. Today we are going to do meter bridge. So as the name suggests, meter bridge basically consists of a 1 meter long scale. So say this is a meter scale. So because this is a scale, we'll show some 1 meter marking on it. To this meter scale, there is a 100 centimeter wire connected. So say this is a 100 centimeter wire. Then next to this wire we have two L-shaped steel strips connected to this. One L-shaped steel strip should be on the left side and another L-shaped strip is on the right side. With the help of the central strip, we have two gaps generated. तो यहाँ पे ये वाला जो है ये central strip and these are two L-shaped strips. So L-shaped metal strips के मदद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो गैप जनरेट हो गए हैं. इस वाले गैप को हम कहेंगे लेफ्ट गैप और इस वाले गैप को कहेंगे राइट गैप. Okay, then on the lower side of the circuitry, the remaining components like battery EMF, a key and a variable rheostat is connected. ये हो गया आपका सॉकेट कंप्लीट. अब लेफ्ट गैप में हम रखेंगे हमारा अननोन रेजिस्टेंस और राइट गैप में रहेगा नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. And from where you selected resistance box. So one of the known resistance is connected on the right gap and an unknown resistance जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है वो हम रखेंगे लेफ्ट गैप में. फिर यहाँ पे इसे लेबल कर देते क्विकली से वायर ए बी और से सेंट्रल स्ट्रिप सी पे एक पॉइंट है सी. पॉइंट सी से कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर. पॉइंट सी से कनेक्ट करेंगे ये गैल्वेनोमीटर. पहले भी मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस. सो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट मेजर करेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर एंड अ पॉइंटर नोन एज जॉकी वी विल ऑब्टेन a balance point. So say the balance point I have obtained is D. Now what is basically balance point? एक पॉइंट जिसमें गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाए. IG करंट क्या हो गया? जीरो हो गया. उस समय हमने एक पॉइंट नोट की है पॉइंट D. पॉइंट D को करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द वायर मेजर करेंगे. Say this length is Lx corresponding to a known resistance X. Say this length is Ly or say Lr corresponding to the known resistance of the resistance box that is R. So R को corresponding length Lr, X को corresponding length Lx. ये मेरी 1 meter long wire मतलब 100 centimeter long wire and this is my meter scale. फाइन. और यहाँ तक दिखा दो मेटल स्ट्रिप को. फाइन. सो ये आपकी मीटर स्केल आ गई. 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर आ गई. यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ Lx फाइंड कर लिया, बैलेंसिंग लेंथ Lr फाइंड कर लिया. अब हम कंसिडर करेंगे
relation between resistance and length. So we know that resistance of any wire is directly proportional to the length and inversely proportional to its cross sectional area. Then what should be the proportionality constant? So we say rho, resistivity is the proportionality constant. So we say R is equal to rho L by A. अब यहाँ जो आपने वायर ली है, that wire is of a uniform cross sectional area. So A for Lx and A for Lr is same. So it is changing, Lx and Lr is changing. क्या अप्लाई करना है हमें? व्हिटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करना है. तो इसके लिए इक्विलिब्रियम व्हिटस्टोन नेटवर्क कैसे दिखेगा उसे हम इमेजिन कर लेते हैं. तो व्हिटस्टोन नेटवर्क क्या होता है? 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. सो देखिए मैंने ये क्वाड्रिलैटरल बना दिया और इसके 4 साइड पे मैंने 4 रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से दिखा दिए. विच इज दिस रजिस्टर? सो एक्स इज द रजिस्टर हियर. Which is this register? R is the register here. ये वाला रजिस्टर होगा AD वायर का रेजिस्टेंस, AD वायर का रेजिस्टेंस, और ये वाला रजिस्टर होगा DB वायर का रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इन द वायर DB. और बीच में हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है. और इसी तरह से इस टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है आपका बैटरी and remaining elements like key and a rheostat or something. So ये उसका equilibrium व्हिटस्टोन नेटवर्क आ गया. व्हिटस्टोन नेटवर्क का हमारा बैलेंसिंग कंडीशन क्या था? तो कुछ इस तरह से था R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4. ऐसे भी आप ले सकते हो, आप कैसे भी ले लीजिए. अगर आपने व्हिटस्टोन वाला टॉपिक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके एक बार आप व्हिटस्टोन वाला टॉपिक देख लीजिए. उसकी बैलेंसिंग कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. तो दैट इज X/R is equal to RAD/RDB. Resistance in the wire AD and resistance in the wire DB. चलिए वो ऑब्टेन करेंगे लेंथ की मदद से. Then what will be resistance in the wire AD? Resistance in the wire AD is nothing but rho. AD corresponds to Lx. Rho Lx by cross sectional area A. And resistance in the wire DB is again rho LR by cross sectional area A. इन दोनों को ऊपर वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी गेट X by R is equal to rho Lx by A whole upon rho LR by A. Rho is constant, will get cancelled. Area is same, uniform cross section. So we get X/R is equal to Lx/LR. लो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज का एक्सप्रेशन. आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. x इज इक्वल टू Lx/LR टाइम्स R. रेजिस्टेंस बॉक्स के मदद से आपके पास R की वैल्यू है. Lx और Lr हमने जॉकी और गैल्वेनोमीटर की मदद से ऑब्टेन किया. उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.